Hello, friends. How are you all? Meeting you after a long time. So, how you spent your Diwali vacation? You did any productive work? You did the study of grammar and all? How you solved your paper, dear ones? How you solved your papers? I hope you have solved it well. Now we will see what's the matter. After correction, I'll be knowing who has done what. So today, once again, I'll welcome you to English session, lesson number 7, A Voyage to Lilliput. How to pronounce it? A Voyage to Lilliput. Voyage is the journey done through ship. शिप से जो जर्नी करते हैं ना उसको वॉयेज बोलते हैं. आपने गलिवर की कहानी बचपन में तो सुनी होगी, पता नहीं, यू माइट हैव हर्ड in your young age, but today I am going to describe you a voyage to Lilliput. Actually, this is written by about the author. He is an Irish novelist, Jonathan Swift. His name is Jonathan Swift. He is an Irish novelist, poet and essayist. Means he is writing poems also, novels also, and essays also. Remembered for works such as Gulliver's Travel. This Gulliver's Travel is taken from the Voyage to Lilliput. Gulliver's Travel is a novel. Voyage to Lilliput has been taken from it. It's a short story. Lemuel Gulliver was a man who during his first voyage was washed ashore after a shipwreck. Shipwreck means accident of ship in the sea. Shipwreck means the ship has been torn, spoiled, या फिर टूट जाती है शिप तो वो ऐसे बह के किनारे पे खुद ही लग जाता है. कौन? लिम्यूल गलिवर. उसका वो फर्स्ट ही वॉयज था. एंड फाइंड्स हिमसेल्फ अ प्रिजनर अमॉन्ग्स्ट अ रेस ऑफ टाइनी पीपल. और जब खुद को वो कहाँ पाता है, जब वो तूफान आ जाता है और शिप टूट जाती है और ये किनारे लग जाता है, तो ये अपने आप को कहाँ पाता है? ये बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ. जैसे कि देखो इसमें बताया है, आपको अभी वो पेज नहीं है पर मैं पिक्चर दिखा रही. बहुत सारे छोटे छोटे लिलीपुट्स, टाइनी पीपल हु आर लेस देन 6 इंचेस. एक स्केल रहती है ना, उसमें भी 12 इंच रहते हैं. तो 12 इंच से भी छोटे 6 इंच वाले लोग रहते थे जहाँ पे. टॉल 6 इंचेस टॉल एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ कंट्री ऑफ लिलीपुट. लिलीपुट नाम की कंट्री में रहते थे वो लोग छोटे छोटे. और ये दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली ही वॉज वॉश्ड ऑफ एंड व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ एज अ प्रिजनर. म्हणजे उसको छोटे छोटे लोगों ने मिलके बांध दिया था. हाँ, तो वो कैसे क्या अब इस स्टोरी में अपन जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अ वॉयज टू लिलीपुट. My father had an estate in Nottinghamshire, England, and I was the third of his 5 sons. Means Gulliver had 4 brothers and he was 5th, but by number wise he was 3rd. Means totally 5 children his father had, and he had an estate. Estate means property. He had an estate in Nottinghamshire, is a town in England. After 3 years in Cambridge, I joined. Means he studied for 3 years in the Cambridge University. It's a famous university. And I joined Mr. James Batts, a well-known surgeon in London. Means by profession he was also a doctor. He joined surgeon in London to be trained as a doctor. My own ambition was to travel.
His ambition was to travel. He became a doctor by profession, but उसकी हॉबी क्या थी कि ट्रैवलिंग करना. So after my training was completed, I became a surgeon on a ship named the Swallow. Swallow नाम की शिप पे वो सर्जन बना था. For 3.5 years, I traveled all over the world. Means as it is, his hobby was to travel, and he was, as a doctor, he traveled for 3.5 years. I traveled all over the world. When I came back to England, I got married and settled down for some time. After that, he came back to England because proper he belonged to England, but he traveled all over the world for 3.5 years. And when he came back, he got married and he settled down himself for some time. But I longed for a life on the sea and once again became a surgeon on ship. As it is, his hobby was to travel. So, he was longing for a life on the sea. Means he wanted to spend his life on the ship. So, he became a surgeon on the ship. I made several voyages in the next 6 years to the East and West Indies, and among them, one of my most memorable voyage to the South Seas, which began on May 4th, 1699. As it is, he made many voyages, but the memorable one means यादगार जो था वो एक वॉयज था जो उसने 4 मई 1699 को किया था. I hope all of you have understood that his father had an estate in Nottinghamshire, a town in England, and he was third of his 5 sons. And he joined, after completing his university course, he joined James Batts, a well-known surgeon, and his ambition was to travel. So after his training, he married and settled down. But again, his ambition was to become a surgeon on a ship. So he made several voyages. Among his several voyages, one of his memorable voyage is this voyage to Lilliput. Okay, he did it on 4th May 1699. So it's a long back story. The journey started off well and we traveled happily for nearly 6 months. Means their journey began well and they traveled for 6 months. We were near the coast of Sumatra. Sumatra is an island. When a violent storm struck and we were driven through the seas for days. Violent storm का मतलब एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान आना. वायोलेंट स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत भयंकर तूफान में इनकी शिप जो है वो स्ट्रक म्हणजे फंस गई थी और ये बिखर गए थे, शिप में से अलग हो गए थे. 12 of our crewmen died. 12 इनके जो crewmen रहते हैं ना शिप पे, ये मर गए थे. एंड many became very weak. और बाकी के तो बहुत ही ज़्यादा वीक दुबले हो गए थे, म्हणजे किसी काम के नहीं रहे थे. ऑन द 5th of November, विच वॉज बिगिनिंग ऑफ समर इन दिस पार्ट, उस पार्ट में नवंबर में समर रहता है, समझ में आया. तो जब समर की शुरुआत थी, अवर शिप स्ट्रक अ रॉक एंड स्प्लिट इट इनटू 2. फिर से उनकी शिप जो है वो एक पत्थर से टकरा गई. स्ट्रक अ रॉक मीन्स पत्थर से टकराना. एंड स्प्लिट इट इनटू 2, 2 भागों में बट गई. 6 of the crewmen, of whom I was one, got into a boat and were able to escape. 6 जो क्रूमैन थे उसमें से एक ये भी था गलीवर. ये लोग एक बोट में बैठ के निकल गए. We managed to row for 3 miles when a giant waves swept away all my companions. जैसे तैसे इन्होंने 3 माइल्स की जर्नी की. 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल होता है. तो इन्होंने 3 माइल की जर्नी करने के बाद एक बहुत राक्षसी वेव म्हणजे क्या बोलते हैं, लहर, राक्षसी लहर आके इनको टकरा गई और इनके जो साथी थे वो बिखर गए. वॉज ओनली द वन हु मैनेज टू स्विम टू द शोर. ये अकेला था जो किनारे लग गया था.
आई कुड सी नो साइन ऑफ लाइफ. मुझे वहाँ पे कोई जीवित वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी. नो हाउसेस, नो पीपल, कोई नहीं, कोई गाँव घर नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं. आई वॉज सो एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड म्हणजे त्रस्त होना. बहुत त्रस्त हो गया था, कुछ भी दिख नहीं रहा था. इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पे आके लग गया है. दैट आई ले डाउन ऑन द ग्रास एंड वॉज सून फास्ट अस्लीप. मैं इतना थक गया था कि मैं किनारे लगा और घास पे वैसे ही सो गया. इट वॉज मॉर्निंग वेन आई वोक अप. जब सुबह हुई तब मेरी आँख खुली. आई ट्राइड टू गेट अप बट कुड नॉट मूव. मैं उठना चाहता था पर उठ नहीं पाता था. क्या हो गया मेरे को अचानक. माई आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड टाइटली टू द ग्राउंड एंड इवन माई हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक वॉज टाइड डाउन विद द स्ट्रिंग्स. ऐसे खिल्ले लगा के उसमें इसके बाल बांध दिए थे और हाथ पैर तो बांध ही दिए थे, साथ में बाल भी बांध दिए थे. आई कुड नॉट इवन टर्न माई हेड. मैं सिर ऐसे हिला भी नहीं सकता था, इतना मुझे टाइट इन लोगों ने बांध दिया था. एंड कुड ओनली लुक एट द सन. बस मेरे आंखों के सामने सूरज की रोशनी आ रही थी. विच वॉज ग्रोइंग हॉटर. म्हणजे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिर रही थी. आई हर्ड नॉइसेस बट कुड सी नथिंग. मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी पर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था. आफ्टर अ शॉर्ट while I felt something move up to my left leg. थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेफ्ट लेग पे मेरे कोई आना जाना कर रहा है. ऑन माई चेस्ट एंड ऑलमोस्ट अप टू माई चिन. मेरे छाती से लेके गाल तक कोई आना जाना कर रहा था. यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन हाउ दे आर स्टैंडिंग ऑन हिज बॉडी. बहुत छोटे छोटे थे वो. 6 inches मीन्स यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल दे आर. सो दे वर स्टैंडिंग एंड प्लेइंग ऑल ओवर हिम. उसके ऊपर नीचे जैसे सीढ़ी पे अपन चढ़ते ना वैसे चढ़ रहे थे उसके ऊपर वो. तो इसको ऐसा लगा कि कोई आना जाना कर रहा है. एंड फाउंड इट वॉज अ टाइनी क्रीचर लेस देन 6 inches. अरे और पता चला, आई लुक्ड एट इट एंग्शियसली. मैंने एकदम उत्सुकता से उनकी तरफ देखा तो मुझे पता चला कि ये तो 6 इंच के छोटे छोटे कोई तो भी जीव है. मार्चिंग अप विथ बो एंड एरो इन हिज हैंड. हाथ में तीर कमान लेके इधर से उधर घूम रहे थे. टू एड टू माई एस्टोनिशमेंट आई फेल्ट एटलीस्ट 40 मोर टाइनी मैन फॉलोइंग द फर्स्ट. एक जिसके पास तीर कमान था उसको 40 और लोग उसके पीछे 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 जैसे कि सेना लेके आ रहा. आई शाउटेड सो लाउडली इन सरप्राइज एंड फ्राइट दैट ऑल द लिटिल मैन रन अवे. मैं इतने जोर से चिल्लाया कि वो उधर से भाग खड़े हो गए. मैनी वर हर्ट व्हेन दे जंप्ड अप ऑन द चेस्ट टू द ग्राउंड. मेरे छाती से जब वो नीचे कूदे ना तो उनको जख्मी हो गए सब. कुछ लोग हर्ट म्हणजे जख्मी होना. बट सून दे केम बैक अगेन एंड वन ऑफ देम डेयर्ड टू कम सो नियर एज टू लुक इन टू माई फेस. लेकिन तभी कुछ लोग मेरे चेहरे को देखने आ गए. He studied me and lifted his hand and eyes in admiration. म्हणजे उसने मुझे देखा और मेरे तारीफ में उसने अपने हाथ और आंखों में से पता चल रहा था कि वो मेरी तारीफ कर रहा है. एडमिरेशन मीन्स लाइकिंग. He then shouted something to his friend. I could not understand what he said. In my fright, I broke a few strings and pulled my hand free. वो उसने दूसरे जो छोटा लिलीपुट था उसको कुछ तो भी बोला लेकिन मेरे समझ में नहीं आया क्या बोला. और मैंने जब हाथ ऐसे जोर से खींचा तो ऐसे लगा कि जिस धागों से मुझे बांधा था वो खुल गए थे. एज आई ट्राइड टू कैच फ्यू ऑफ देम दे रैन अवे द सेकेंड टाइम. मैंने मेरे हाथ में उनको पकड़ना चाहा पर वो भाग गए. इन एन इंस्टेंट 100 arrows हिट माई लेफ्ट हैंड.
एक ही सेकंड में 100 तीर उन्होंने मेरे पैर पे छोड़ दिए, छोटे 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 छोटे। दे प्रिक्ड मी लाइक नीडल्स, सुई चुभने जैसे चुभ रहा था। अनदर शावर्स ऑफ एरो वर ऑल शॉट ओवर माई बॉडी। ये म्हणजे ये लोग है ना, इनको इसको जायंट समझ रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा था और ये लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो इनको ये लोग इसको जायंट समझ रहे थे, इसलिए वो बार बार इसके ऊपर तीर चला रहे थे। अनदर शावर ऑफ एरोस वर शॉट ऑल ओवर माई बॉडी। दोज दैट फेल ऑन माई फेस हर्ट मी अ लॉट। मेरे चेहरे पर भी उन्होंने तीर चलाए तो वो मुझे ज़्यादा जख्म दिया, वो तीरों ने मुझे ज़्यादा जख्मी कर दिया। सो आई थॉट इट वॉज वाइजर टू लाई स्टिल। इसलिए मैंने बिना हलचल के थोड़ी देर सो जाना बेहतर समझा। आई थॉट आई कुड मैच देयर ग्रेट आर्मी व्हेन आई फ्रीड माई सेल्फ एट नाइट। मैं देखूंगा इनकी कितनी आर्मी है जब मैं रात को उठूंगा। When they saw I was quiet, they stopped shooting arrows. जब उन्होंने देखा कि मैं हलचल नहीं कर रहा हूँ तो उन्होंने तीर चलाना बंद कर दिया। नहीं तो इसके पैर पे, इसके मुंह पे, इसके छाती पे, इसके पूरे बॉडी पे वो लोग तीर चला रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि इसने हलचल पूरी बंद कर दी है तो दे स्टॉप्ड शूटिंग एरोस। बट आई कुड फील फ्रॉम द नॉइज दैट देयर नंबर वॉज इंक्रीजिंग। लेकिन उनकी आवाज़ से मुझे महसूस हो रहा था कि इनके जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं अभी, म्हणजे इनकी सेना बढ़ रही थी। ओके। When they saw I was quiet, they stopped shooting arrows, but I could feel from the noise that their number was increasing. Moving my head a little, I could see hundreds of them building a stage about 1.5 feet high from the ground. They worked swiftly and efficiently. थोड़ा सा मैंने मेरा सिर घुमाया तो मुझे hundreds of them building a stage of about 1.5 feet, बहुत सारे लोग ऐसे दिखे जो स्टेज बना रहे थे। इतने भाग दौड़ करके दे वर्कड स्विफ्टली एंड एफिशिएंटली, बहुत भाग भाग के इधर से उधर ऐसे स्टेज बना रहे थे। When the stage was fully constructed, a well-dressed man who seemed to be an important officer climbed at the top with the 3 of the other men. He made a long speech in my ear. एक कोई अच्छा ड्रेस किया हुआ इनके इसमें से ही एक कोई आया जो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो वो मेरे कान में बहुत चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से, उसने मेरे कान में स्पीच दिया। मेरे ऊपर चढ़ गया 3 लोगों के साथ और उसने बहुत लंबा स्पीच मेरे कान में बोला। इट सीम टू बी मिक्सचर ऑफ थ्रेट्स एंड प्रोमिसेस। मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ कस्में और वादे थे और कुछ धमकियां भी थी। थ्रेट्स मीन्स धमकी देना। दो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, उनकी भाषा मुझे बरोबर समझ में नहीं आ रही थी। इन रिप्लाई इन अ वेरी हम्बल मैनर आई पुट माई फिंगर्स टू माई माउथ मेनी टाइम्स टू शो दैट आई वॉन्टेड फूड। उसने ऐसे मुंह में हाथ डाल के बताया कि भाई मुझे भूख लगी है। हरगो, आई लर्नड लेटर दैट what they called was a great lord understood me very well. He went down the stage and commanded that several ladders should be applied on my sides. Soon about 100 inhabitants climbed up and walked towards my mouth. They brought hundreds of baskets laden with meat and vegetables. They were like our food but very very small. I ate 2 or 3 baskets of mutton legs at a time and 3 loaves of bread the size of marbles altogether. They brought me barrels of water, each hardly more than a half a pint. They exclaimed in wonder and danced upon my breast with joy and excitement. जैसे ही इसने खाना मांगा, उन्होंने बहुत सारा खाना खिला दिया इसको और वो बहुत खुश हो गए और नाचने गाने लग गए
इसके छाती पे ही नाच रहे थे, गा रहे थे. I could have easily caught 40 to 50 of them and dashed them to the ground. But I felt I was now their guest. Having tasted their food and drink, I had also begun to admire their courage in coming so close to me. म्हणजे मैं तो एक चुटकी में 40-50 लोगों को फेंक सकता था, पर जैसे कि मैंने उनका खाना खाया था तो मैं नहीं चाहता था कि नमक हरामी करूं. सो मुझे भी इनका खाना और इनका साहस अच्छा लगा के बावजूद उसके कि इतना डर रहे थे, लेकिन मेरे पास आने लग गए थे. Soon a person of high rank came up to my chest and read something from a tiny paper, smaller than my thumbnail. I was told later it was an order from the king that I should be moved to their capital city. उसके बाद उसको बताया गया कि राजा ने बुलाया है तो तुझे कैपिटल सिटी में जाना पड़ेगा. I made signs with my free hand that I wanted my freedom. It appeared he understood me, for he shook his head and told me with signs that I must be carried as a prisoner. उसको इशारों से वो बोल रहा था कि मुझे आज़ादी चाहिए, लेकिन वो भी समझ गए थे, तो उन्होंने भी इशारे से इसको बताया कि अभी तो तेरे को राजा के पास कैदियों के जैसे हमको लेके जाना पड़ेगा. He then left soon and they applied some balm or ointment in all the places where their arrows had hit me. जहाँ जहाँ उन्होंने तीर मारे थे वहाँ वहाँ उन्होंने उसको मरहम लगा के दिया. This was due to some medicine they had mixed in my water. They then loosened my bonds and very soon Lemuel Gulliver was fast asleep in a strange land called Lilliput, the land of little men. उन्होंने पानी में कुछ तो भी ऐसी दवाई मिलाने की वजह से इसको वापस से इतनी गहरी नींद आ गई और ये उसी स्ट्रेंज आइलैंड लिलीपुट नाम के आइलैंड पे सो गया. लिलीपुट मीन्स लैंड ऑफ लिटिल मैन. लिलीपुट मीन्स लैंड ऑफ लिटिल मैन. आई होप you have all understood the story. So we will discuss rest of the things in the next video.